رات گہری ہو چکی تھی، مگر بغداد کے مشہور بازار میں زندگی اب بھی رواں دواں تھی۔ چراغوں کی روشنی میں ہر طرف ہلچل تھی۔ قالین بیچنے والے، مسالوں کی دکانیں، سونے کے زیورات کے تاجر، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا۔ اسی بازار میں ایک شخص اپنی شان و شوکت کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کا نام یوسف تھا اور وہ بغداد کے امیر ترین تاجروں میں شمار ہوتا تھا۔ وہ ایک قیمتی عبا پہنے ہوئے تھا جس کے کناروں پر سونے کے دھاگے کڑے تھے، اور اس کی انگلی میں ایک بڑا یاقوت جڑا ہوا تھا جو بازار کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ یوسف کے ساتھ دو نوکر تھے جو اس کے اشارے پر چلتے تھے۔ وہ ہر دکان کے آگے رکتا، مگر چیزیں خریدنے کے بجائے دکانداروں کو حقارت بھری نظروں سے دیکھتا اور آگے بڑھ جاتا۔ اسے فخر تھا کہ وہ دوسروں سے بہتر ہے، کہ اس کی دولت اسے سب پر برتر بناتی ہے۔ اچانک بازار کے ایک کونے میں ایک بوڑھا بڑھئی بیٹھا نظر آیا۔ اس کے سامنے لکڑی کے کچھ پرانے برتن رکھے تھے جنہیں کوئی خریدنے کو تیار نہ تھا۔ یوسف نے اس کی حالت دیکھ کر ہنسی اڑائی۔ یہ لوگ زندگی بھر محنت کرتے ہیں اور پھر بھی غریب ہی رہتے ہیں۔ شاید قسمت ان پر ہنستی ہے۔ بوڑھے بڑھئی نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کا تجربہ اور ایک عجیب سی روشنی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، بیٹا، قسمت صرف ایک پل کی بات ہوتی ہے۔ آج تیرا وقت ہے، کل کسی اور کا ہوگا۔ غرور کی دیوار اونچی ضرور ہوتی ہے، مگر جب گرتی ہے تو انسان کو پاتال میں لے جاتی ہے۔ یوسف نے قہقہا لگایا، میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں بغداد کا سب سے کامیاب تاجر ہوں۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، وقت فیصلہ کرے گا، جلدی آ دیر سے۔ یوسف نے حقارت سے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گیا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ قسمت کا کھیل شروع ہو چکا ہے اور اس کے غرور کا انجام قریب تھا۔ سورج کی پہلی کرنوں نے بازار کی گلیوں کو روشن کر دیا تھا۔ دکاندار اپنی دکانیں کھول رہے تھے، مزدور بوریوں میں سامان بھر رہے تھے اور گاہک خریداری کے لیے آ رہے تھے۔ ہر طرف زندگی کی چہل پہل تھی، مگر یوسف کے محل نما گھر میں ایک مختلف منظر تھا۔ یوسف کے ملازم دروازے پر کھڑے حیرت میں تھے۔ وہ بے چینی سے سرگوشیاں کر رہے تھے، کیونکہ آج وہ شخص جو ہر صبح بازار میں اپنی شان دکھانے جاتا تھا، ابھی تک بستر پر پڑا تھا۔ یوسف ہمیشہ فجر سے پہلے اٹھتا، مگر آج سورج نکل آیا تھا اور وہ اب تک سویا ہوا تھا۔ جب ایک ملازم نے ہمت کر کے اسے جگایا تو یوسف نے سر اٹھایا اور فوراً اپنا سر تھام لیا۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا اور اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا تھا۔ خواب میں وہ خود کو بازار میں کھڑا دیکھتا ہے، مگر لوگ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اس کے قیمتی لباس پر دھول جم چکی ہے اور وہ جس کسی سے بات کرتا ہے وہ حقارت سے ہنستا اور چلا جاتا ہے۔ وہ ایک دکاندار کے پاس جاتا ہے، مگر وہ کہتا ہے، تم کون ہو؟ میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر وہ اپنے محل کی طرف بھاگتا ہے، مگر محل کی جگہ ایک ویران کھنڈر نظر آتا ہے۔ یوسف ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھا۔ یہ بس ایک خواب تھا، اس نے خود کو تسلی دی، مگر دل کی دھڑکن تیز تھی، جیسے کوئی انجان خطرہ قریب آ رہا ہو۔ وہ جلدی سے تیار ہوا، اپنی قیمتی عبا پہنی اور بازار جانے کے لیے محل سے نکلا۔ جیسے ہی وہ بازار پہنچا، ایک عجیب منظر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ لوگ بے چینی سے کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ یوسف نے اپنے ایک جاننے والے تاجر سے پوچھا۔ تمہیں نہیں معلوم؟ بادشاہ نے ایک نیا قانون نافذ کر دیا ہے۔ کل رات شاہی وزیر نے اعلان کیا کہ جو تاجر ناجائز منافع کماتا ہے، اس کے تمام مال و اسباب کو ضبط کر لیا جائے گا۔ تاجر نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ یوسف کو لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے کھسک گئی ہو۔ اس کی دولت کا زیادہ تر حصہ ناجائز منافع اور ذخیرہ اندوزی سے حاصل کیا گیا تھا۔ اگر بادشاہ کے لوگ اس کے گودام پر چھاپا ماریں گے تو وہ سب کچھ کھو دے گا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور جلدی سے اپنے ملازموں کو بلایا، گودام پر جا کر قیمتی سامان کہیں اور منتقل کرو فوراً۔ مگر ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک شاہی سپاہیوں کا ایک دستہ بازار میں داخل ہوا۔
लोग रास्ते से हट गए। सिपाहियों के दरमियान एक मुअज़्ज़ज़ शख्स खड़ा था। यह खुद बादशाह का करीबी वजीर था। वजीर ने एक कागज निकाला और जोर से ऐलान किया, बगदाद के ताजिर यूसुफ बन सईद पर नाजायज मुनाफाखोरी, जखीरा अंदोजी और धोखादही के इल्जामात हैं। बादशाह के हुक्म पर उसके तमाम कारोबार और जायदाद को जब्त कर लिया जाता है। यूसुफ के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हुजूम की तरफ मुड़ा, मगर वही लोग जो कल तक उसके आगे झुकते थे अब इससे दूर हो गए। कोई इसकी मदद के लिए आगे ना बढ़ा, कोई इसके हक में ना बोला। अचानक इसकी नजरें बाजार के कोने में बैठे इसी बूढ़े बढ़ई पर पड़ी जो कल उसे नसीहत कर रहा था। बूढ़े ने एक नजर यूसुफ पर डाली और धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, गुरूर की दीवार जितनी ऊंची हो, जब गिरती है तो इंसान को पाताल में ले जाती है। यूसुफ के पैरों तले जमीन निकल चुकी थी। यूसुफ का दिल धक धक कर रहा था। शाही सिपाही इसे पकड़कर दरबार में ले जा रहे थे, जहां बादशाह इंसाफ के तख्त पर बैठा था। दरबार में सैकड़ों लोग मौजूद थे, कुछ ताजिर, कुछ आम शहरी और कुछ यूसुफ के वही पुराने दोस्त जो कल तक उसकी खुशामद किया करते थे। मगर आज इन सब के चेहरों पर सिर्फ तजस्सुस और तंज था, हमदर्दी का नाम वो निशान तक न था। यूसुफ के जहन में एक ही सवाल था, ये सब मेरे साथ कैसे हो गया? मैं कल तक बगदाद का सबसे अमीर आदमी था और आज मुजरिमों की तरह यहां खड़ा हूं। बादशाह ने नजरें उठाकर वजीर की तरफ देखा। वजीर, क्या तुम्हें यकीन है कि यह शख्स नाजायज मुनाफाखोरी में मुलव्वस है? वजीर ने अदब से सर झुकाया, जी हुजूर, हमारे मुखबिरों ने रिपोर्ट दी है कि यूसुफ ने अनाज और दीगर जरूरी अशिया जखीरा कर रखी थीं ताकि कहत के वक्त उनकी कीमत बढ़ाकर ज्यादा मुनाफा कमाए। हमने इसके गोदाम पर छापा मारा और वहां सैकड़ों बोरियां अनाज की छपी हुई मिले, जबकि बाजार में लोग भूख से मर रहे हैं। दरबार में एक शोर मच गया। लोग आपस में सरगोशियां करने लगे। कुछ महीने पहले बगदाद में कहत की सूरत हाल थी और लोग रोटी के एक टुकड़े के लिए तरस रहे थे। तब ताजिरों ने कीमतें बढ़ा दी थीं और आम आदमी के लिए कुछ भी खरीदना मुश्किल हो गया था। अब सबको समझ आ रहा था कि इस सब के पीछे यूसुफ जैसे लोग थे। यूसुफ ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, बादशाह सलामत, मैं बेगुनाह हूं। मैंने हमेशा मेहनत से दौलत कमाई है, कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। बादशाह ने इसे घूर कर देखा, फिर दरबार में मौजूद ताजिरों की तरफ रुख करके कहा, क्या यहां कोई ऐसा शख्स है जो यूसुफ की ईमानदारी की गवाही दे सकता हो? यूसुफ ने तेजी से नजरें दौड़ाई। वही लोग जो कल तक उसके करीब होने में फख्र महसूस करते थे, आज सब ने नजरें झुका ले। किसी ने भी आगे बढ़कर इसके हक में एक लफ्ज न कहा। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, यूसुफ की तमाम जायदाद जब्त कर ली जाए और इसे शहर बदर कर दिया जाए। यह सुनकर यूसुफ के पैरों तले जमीन निकल गई। वो चिल्ला उठा, नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं सब कुछ वापस कर दूंगा, मैं लोगों को अनाज मुफ्त में बांट दूंगा। मगर बादशाह ने इसकी एक न सुनी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। वो खुद को आजाद करवाने की कोशिश करता रहा, मगर उसकी फरियाद सुनने वाला कोई ना था। जैसे ही इसे दरबार से बाहर निकाला गया, इसकी नजर फिर उसी बूढ़े बढ़ई पर पड़ी जो दरबार के दरवाजे के करीब खड़ा था। बूढ़े के चेहरे पर कोई हैरत ना थी, बस एक अफसोस था। बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, गुरूर की कीमत हमेशा अदा करनी पड़ती है यूसुफ, और तुम्हारा वक्त आ गया। यूसुफ का दिल डूबने लगा। अब इसके पास कुछ ना बचा था। दो सिपाहियों ने यूसुफ को पकड़कर बगदाद के बड़े दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, यूसुफ ने पीछे मुड़कर शहर की फसील को देखा। ये वही शहर था जहां कल तक वो सबसे बड़ा ताजिर था, जहां उसकी इज्जत थी, दौलत थी और लोग उसके आगे पीछे घूमते थे। मगर आज वही शहर उसे धुतकार चुका था। यूसुफ ने थकी हुई नजरों से अपने लिबास की तरफ देखा। वो कीमती अबा जो कल तक शान की अलामत थी, अब मिट्टी में लथपथ थी।
इसकी अंगूठी भी सिपाहियों ने छीन ली थी और वो पहली बार खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था। ये सब क्या हो गया, वो खुद से बुड़बुड़ाया। वो जानता था कि बगदाद से बाहर का सफर आसान नहीं था। दिन की गर्मी और रात की डांसेस बर्दाश्त करना एक अलग अजाब था। इसे कहीं पनाह मिलेगी या नहीं, कुछ खाने को मिलेगा या नहीं, कुछ मालूम नहीं था। वो बेदिली से आगे बढ़ा। कई घंटे तक वो चलता रहा, यहां तक कि सूरज ढलने लगा। भूख और प्यास की शिद्दत ने उसे बेहाल कर दिया था। अचानक इसकी नजर एक छोटे से गांव पर पड़ी जो बगदाद के करीब था। इसकी हिम्मत बंधी और वो गांव की तरफ बढ़ा। गांव का कुनवा। गांव में दाखिल होते ही सबसे पहले इसने एक कुनवा देखा। वो तेजी से आगे बढ़ा और पानी निकाल कर पीने लगा। पानी की हर बूंद इसके अंदर नई जिंदगी भर रही थी। मगर जैसे ही इसने कुनवे के पास बैठे चंद लोगों को देखा, इसका दिल धक से रह गया। वो सब लकड़ी के बर्तन बना रहे थे और उनमें से एक बूढ़ा बढ़ई भी था। बूढ़े ने यूसुफ को देखा, मगर उसके चेहरे पर हैरत नहीं थी, जैसे वो पहले ही जानता हो कि ये वक्त आएगा। तो किस्मत तुम्हें यहां ले आई, बूढ़े ने सुकून से कहा। यूसुफ को कोई जवाब न सूझा। कल तक जिसे वो एक मामूली बढ़ई समझ रहा था, आज वही शख्स उसके सामने खड़ा था और वो खुद एक बेयारो मददगार मुसाफिर बन चुका था। मुझे काम चाहिए, यूसुफ ने शर्मिंदा लहजे में कहा। मैं भूखा हूं, मेरे पास कुछ नहीं बचा। बूढ़े ने एक गहरी नजर यूसुफ पर डाली, फिर उसके करीब आकर बोला, दौलत के नशे में इंसान ये भूल जाता है कि हाथों का काम ही असल इज्जत है। अगर तुम्हें सीखने का हौसला हो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूं, मगर याद रखो, ये तुम्हारे गुरूर का इम्तिहान होगा। यूसुफ ने सर झुकाकर कहा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। बूढ़े ने एक लकड़ी का टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, पहले इसे तराशना सीखो, फिर देखेंगे कि तुम काबिल हो या नहीं। यूसुफ ने कांपते हाथों से लकड़ी पकड़ी। वो जो कल तक शाहाना जिंदगी गुजार रहा था, आज एक आम मजदूर की तरह काम सीखने जा रहा था। क्या यूसुफ सीख सकेगा? क्या वो बदल जाएगा? रात का अंधेरा फैल चुका था। गांव के छोटे घरों में चिराग जल रहे थे, मगर यूसुफ के लिए ये रात बहुत भारी थी। वो एक लकड़ी के तख्ते पर बैठा था, हाथ में चाकू और सामने एक मोटी लकड़ी जिसे वो तराशने की कोशिश कर रहा था। बूढ़ा बढ़ई करीब बैठा खामोशी से देख रहा था। यूसुफ के हाथ कांप रहे थे क्योंकि इसने कभी जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया था। चंद मिनट बाद वो झुंझला कर खड़ा हो गया और चाकू जमीन पर फेंक दिया। ये बहुत मुश्किल है, मैं एक ताजिर था, मैंने कभी ये सब नहीं किया, मैं नहीं कर सकता, वो गुस्से में बोला। बूढ़े ने सुकून से कहा, तुम्हारे हाथ मुश्किल काम के आदी नहीं हैं, मगर तुम्हारा गुरूर आज भी तुम्हारे अंदर जिंदा है। अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो सब्र करो और सीखो। यूसुफ ने गहरी सांस ली और खामोशी से दोबारा लकड़ी को पकड़ा। वो जानता था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अगले कुछ दिन वो यही करता रहा। सुबह सवेरे उठकर लकड़ी तराशता, कभी ठीक कर पाता तो कभी गलती कर बैठता, मगर वक्त के साथ साथ इसके हाथ माहिर होने लगे। एक महीना बाद अब यूसुफ लकड़ी के खूबसूरत बर्तन और खिलौने बनाने में माहिर हो चुका था। वो रोज सुबह बूढ़े बढ़ई के साथ काम करता और शाम को गांव के बाजार में जाकर वही चीजें बेचता। आज भी वो बाजार में खड़ा था, मगर आज एक अजीब बात हुई। एक अमीर ताजिर वहां से गुजरा और यूसुफ के हाथ से लकड़ी का एक नफीस बर्तन लेकर देखने लगा। ये वाकई बहुत खूबसूरत है, क्या तुमने खुद बनाया है? ताजिर ने हैरानी से पूछा। यूसुफ ने पहली बार फख्र के बजाय आजिजी से जवाब दिया, हां, मैंने बनाया है। ताजिर ने मुस्कुराकर कहा, ऐसे हुनरमंद लोग कम होते हैं। मैं तुमसे ये बर्तन खरीदना चाहता हूं, बल्कि अगर तुम चाहो तो मेरे लिए काम कर सकते हो। यूसुफ हैरान रह गया। वही ताजिर बरादरी जो कल तक उसे धुतकार चुकी थी, आज उसके हाथ के हुनर को सराह रही थी।
रात को जब वो वापस बढ़ई की झोंपड़ी में पहुंचा तो उसने बूढ़े को सब कुछ बताया। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, दौलत सिर्फ हाथों में हो तो गुरूर पैदा करती है, मगर जब हुनर तुम्हारे साथ हो तो इज्जत देता है। यूसुफ ने सर झुका लिया। आज पहली बार उसे समझ आया कि गुरूर इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, मगर मेहनत और हुनर उसे दोबारा खड़ा कर सकते। मगर क्या किस्मत ने वाकई उसे मुआफ कर दिया था? अभी कुछ बाकी था। 2 साल गुजर चुके थे। वही यूसुफ जो कभी बगदाद का सबसे बड़ा ताजिर था, अब एक माहिर बढ़ई बन चुका था। इसकी बनाई हुई लकड़ी की अशिया न सिर्फ गांव में बल्कि बगदाद के बाजारों में भी मशहूर हो चुकी थी। इसका हुनर उसकी पहचान बन चुका था, मगर अब उसके चेहरे पर गुरूर की जगह आजिजी थी। आज वो पहली बार बगदाद वापस जा रहा था। वही शहर जिसने इसे जिल्लत के साथ निकाल दिया था, वही बाजार जहां कभी वो अमीर तरीन शख्स था, आज वो एक आम कारीगर की तरह जा रहा था। मगर इस बार वो खाली हाथ नहीं था। उसके पास इसका हुनर था, इसकी मेहनत थी और सबसे बढ़कर एक बदला हुआ दिल था। बाजार में एक नया आगाज। यूसुफ ने बगदाद के बाजार में एक छोटी सी दुकान खोली जहां वो लकड़ी के बर्तन और नफीस खिलौने फरोख्त करने लगा। जल्द ही लोग उसकी कारीगरी के मोतरिफ होने लगे और उसका कारोबार दोबारा तरक्की करने लगा। मगर इस बार वो मुनाफा के पीछे नहीं भागा, बल्कि ईमानदारी और मेहनत को अपना उसूल बनाया। एक दिन जब वो दुकान पर काम कर रहा था तो अचानक उसकी नजर इसी बूढ़े बढ़ई पर पड़ी जो बाजार में चल रहा था। यूसुफ ने फौरन आगे बढ़कर उसके पांव छू लिए। बाबा, आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं। मैंने गुरूर को छोड़ दिया है और मेहनत को अपना लिया है। यूसुफ की आंखों में अकीदत थी। बूढ़े ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा और कहा, गुरूर तब खत्म होता है जब इंसान को एहसास हो कि वो कुछ भी नहीं था और वही एहसास इसे अजीम बना देता। बादशाह का दरबार, एक हैरत अंगेज फैसला। चंद महीने बाद बगदाद के वजीर को यूसुफ की ईमानदारी और हुनर के बारे में मालूम हुआ और वो बादशाह के पास गया। बादशाह सलामत। वही यूसुफ जो पहले जखीरा अंदोजी में मुलव्विस था, आज बगदाद का सबसे ईमानदार ताजिर बन चुका है। वो लोगों को सिखाता है कि दौलत का गुरूर बर्बादी लाता है और मेहनत इंसान को सच में अमीर बनाती है। बादशाह ने हैरानी से सुना और यूसुफ को दरबार में बुलाया। जब यूसुफ बादशाह के सामने आया तो उसकी नजरें झुकी हुई थीं, दिल में कोई गुरूर नहीं था, सिर्फ आजिजी थी। यूसुफ, तुम्हें याद है जब तुम्हें यहां से शहर बदर किया गया था? बादशाह ने सख्त लहजे में पूछा। यूसुफ ने सर झुकाकर कहा, जी बादशाह सलामत, और वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। आज मैं जान चुका हूं कि गुरूर की दीवार कितनी कमजोर होती है। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, पहले तुम एक दौलतमंद ताजिर थे मगर ईमानदारी नहीं थी। आज तुम्हारे पास ईमानदारी है और यही सबसे बड़ी दौलत है। मैं तुम्हें बगदाद में दोबारा तिजारत की इजाजत देता हूं, मगर एक शर्त पर, तुम हमेशा अपने हुनर को दूसरों तक पहुंचाओ और ईमानदारी को ना छोड़ो। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह सलामत, मैं वादा करता हूं कि मैं कभी गुरूर को अपने करीब नहीं आने दूंगा। एक नया सफर। यूसुफ दोबारा बगदाद का मशहूर ताजिर बन गया, मगर अब वो दूसरों के लिए मिसाल था। इसकी दुकान में हर रोज कई लोग आते और वो सबको यही सिखाता, दौलत आनी जानी चीज है, मगर हुनर और ईमानदारी हमेशा इंसान के साथ रहते हैं। गुरूर इंसान को तबाह कर देता है, मगर आजिजी इसे फिर से खड़ा कर देती है। वही यूसुफ जो कभी गुरूर में डूबा हुआ था, आज बगदाद के सबसे मुअज़्ज़ज़ लोगों में शुमार होता था, क्योंकि अब वो एक बदला हुआ इंसान था।